myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 13, Decision Structure, part 1. In last session, we learned about getchar, getc, getch as well as putchar, putc, putch, right? So getchar we are using for the if we want to accept the single character. Same way putchar we are using to accept or to display single character. Now in this session we are going to learn about the decision structure. Most of the C program presented so far follow the sequential structure of a program execution. Now student, what is the meaning of sequential structure? Whatever the program you will execute, it will execute in a sequence way. That is called sequential structure. So the instruction are executed one by one sequentially. सारे एग्जीक्यूशन एट अ टाइम नहीं होंगे, ये एक के बाद एक सीक्वेंस में होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सीक्वेंशियली in the order in which that they appear in the program. So in real life practice, during execution of C program, we may want to execute only some of the statement based on some condition. For this purpose, it is required to change the flow of the sequence of instruction. So C language provides facility through special kind of statement that can change the flow of sequence of instruction in the program. Such a statement are called decision structure statement. स्टूडेंट, डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट यानी क्या? तो कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें हमें एक कंडीशन तक ही उसको एग्जीक्यूट करना है, एक स्टेटमेंट के बाद एक कंडीशन के बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होना चाहिए, बट जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो सीक्वेंस में आना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग डिसीजन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं. लाइक एग्जांपल, अगर हम लोग टेबल देखने रहते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल अगर हमें करना है तो वो 3 का टेबल, 2 का टेबल हम लोग बाय यूजिंग लूप परफॉर्म कर सकते हैं. तो अभी इसके लिए लूप कैसे यूज करना है, डिसीजन स्ट्रक्चर का यूज कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे. तो नीड फॉर डिसीजन स्ट्रक्चर इन सी, डिसीजन स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी सी प्रोग्रामिंग में? तो डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट हेल्प अस टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम. डिसीजन स्ट्रक्चर से क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट पे अगर जंपिंग करना है तो वो इजीली पॉसिबल है बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सम कंडीशन, राइट? So sometimes decision structure statement are also known as selective structure statement, branching statement or decision making statement. Student, in exam this question may be asked कि decision structure को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो selective structure, branching statement और decision making statement. Okay, as these statement are controlling the flow of execution, they are also known as control statement. So C language provide two basic type of decision structure statement, if and switch. In this chapter we will discuss how if and switch statement can be used to change the flow of instruction in the program. Student, C language के अंदर जो हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं उसमें if और switch स्टेटमेंट आता है. ओके, एंड if स्टेटमेंट कब यूज करना है हमें? if स्टेटमेंट इज वन ऑफ द पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. if स्टेटमेंट क्या है? तो ये एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है. जब भी हमें ओनली एक कंडीशन चेक करनी है तभी हम लोग if स्टेटमेंट का यूज करते हैं, which can be used to transfer control of instruction execution. The if statement can be used in following different way: simple if statement, if else statement, nested if statement, else if ladder statement. ये इसके if statement के टाइप है. टोटल 4 टाइप है स्टूडेंट. इसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा सिंपल if स्टेटमेंट. if स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं इसके बारे में जानेंगे. तो प्रोग्राम देखते हैं सीधा. तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखना, प्रोग्राम में हम लोग ने एंट्री किया है एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का. एंटर योर मार्क्स. जैसे कोई स्टूडेंट इसमें मार्क्स लिखेगा वो चेक होगा कि अगर मार्क्स उसके ग्रेटर देन 80 है तो उसको मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, हैव अ नाइस टाइम, राइट? इतना ही मैसेज फिलहाल हमें प्रिंट करना है. तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे. तो फॉर प्रैक्टिकल ओपन योर C free file compiler. Inside that start programming. So here blank file, right? Now hash include, it should be in small letter, so hash include studio.h
स्टूडेंट ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नाम का जो हेडर फाइल यूज किया है, द रीजन फॉर सिस्टम क्लियर, जैसे हमारे स्क्रीन पे कोई मैसेज आ जाए और नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें उसको तो वो क्लीन होना चाहिए जो प्रीवियस आउटपुट था वो, इसीलिए सिस्टम क्लियर के लिए हम लोग ने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल यूज की है। ओके, तो हैश इंक्लूड stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। आफ्टर दैट इंटीजर मेन के अंदर से हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो मार्क्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और सिस्टम ब्रैकेट के अंदर क्लियर, तो जिसकी वजह से जब भी आउटपुट एग्जीक्यूट होगा अपने आप सिस्टम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट एंटर योर मार्क्स, ओके स्टूडेंट। आफ्टर दैट स्कैनएफ से वो उसको स्टोर करेंगे, पहले स्कैनएफ के यूज करते हैं हम लोग, तो कोई भी वेरिएबल की अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है फ्रॉम यूजर तो उसके हम लोग को स्कैनएफ का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग ने इंटीजर लिया है इसलिए यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज होगा और यहाँ पे मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो यूजर मार्क्स लिखेगा तो मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। नाउ अप्लाई कंडीशन, इफ मार्क्स ग्रेटर दैन 80, अगर मार्क्स जो है वो 80 से ज़्यादा है तो हमें यूज़र को क्या मैसेज देना है स्टूडेंट, तो यूज़र को मैसेज देना है हमें प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट, हैव अ नाइस टाइम, हम लोग ये मैसेज कंबाइन भी कर सकते हैं, हैव अ नाइस टाइम, ओके, semicolon, and after that the end of the statement that we have to use return 0, semicolon, and execute this program. Will not find double quote, system, okay, let's save this program again by name if statement 1 file save as if statement 1 dot cpp, right, f5, how they use it, system bracket clear hash include standard library dot h, so I use this thing only, let me check stdlib, okay student, no issue, I remove this line because this is your turbo C compiler, C free compiler, but this thing will execute only turbo C or side editor, so this application is different, that's why this line will be not work. Now normally I run this program, so you will get the output here. I close it and again I open it. So let's run this program student, F5, save it, press F5, so you will get the output, enter your marks, so I am writing your marks, suppose 98, so congratulations, have a nice time, the message will be print. Now the next program, next topic is simple if statement that we already seen, right? After that the if else statement. Now how this if else statement will be work student,
इन सिंपल इफ स्टेटमेंट देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट ब्लॉक, राइट। इफ के अंदर कंडीशन रहती थी, अगर वो ट्रू हो जाए तो इफ स्टेटमेंट के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। बट इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर विच गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट होता था अगर उसका जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा, तभी वो एग्जीक्यूट होता था। सिंपल इफ स्टेटमेंट टेक्स नो एक्शन इन केस व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स, बट जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है स्टूडेंट, उसमें अगर वो कंडीशन रॉन्ग आ जाए तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता था। बट व्हाट हैपन इफ वी वांट टू टेक सम एक्शन इन केस ऑफ फॉल्स आंसर, अगर यही चीज अगर फॉल्स आंसर आए तो उस पर कुछ एक्शन होनी चाहिए, तो वो कैसे हैंडल किया जाएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर ग्रेटर देन 40 देन वी वांट टू डिस्प्ले मैसेज स्टूडेंट पास। अगर किसी स्टूडेंट के पास 40 से स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो उसको मैसेज आना चाहिए स्टूडेंट पास, अदरवाइज वी वांट टू डिस्प्ले मैसेज स्टूडेंट फेल। इन सच ए केसेस द इफ एल्स स्ट्रक्चर इज यूजफुल। ओके, समझ में आया स्टूडेंट, इफ एल्स का यूज क्यों करना है। अभी सिंपल इफ से हम लोग ये मैसेज दे सकते हैं स्टूडेंट पास, बट अगर कंडीशन रॉन्ग हो गई तो स्टूडेंट फेल का मैसेज देने के लिए भी हमें कुछ स्टेटमेंट चाहिए, तो हम लोग एल्स पार्ट के थ्रू स्टूडेंट इज फेल ये मैसेज भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम। सी हियर सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिया गया है, मार्क्स, फिर एंटर योर मार्क्स। अगर वो मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, अगर वो मार्क्स 40 से कम है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम यू आर फेल, राइट स्टूडेंट। एंड हैव अ नाइस टाइम, मतलब दोनों के लिए कॉमन मैसेज आना चाहिए, इसलिए यहाँ से बाहर लिखा है। ये भी प्रैक्टिकल एक बार देख लेते हैं। अगर मार्क्स सपोज 40 से ज़्यादा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, ओके। अगर नहीं, अगर सपोज उसके मार्क्स 40 से कम है तो उसको मैसेज जाना चाहिए प्रिंट एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम you are fail, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे इन दोनों के लिए कॉमन मैसेज हैव अ नाइस टाइम, ये बाहर लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, हैव अ नाइस टाइम। चलो सेव करते हैं F5, एंडिंग में सेमीकोलन देना है, okay. Now enter your marks. Suppose I am writing here 94 marks, then congratulations you are passed, have a nice time, right। अभी स्टूडेंट अगर सपोज वापस इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, enter your marks, I am writing here 25, so congratulations, sorry, let's check, yeah, here the bracket mistake, if marks is greater than 40 then if statement will be executed, if marks is less than 40 else statement will be executed। Let's start now. The marks is, let's run the program, 25, while it's getting the same message, let me check, marks else right, it's not storing the value, that's why it's showing the wrong message. Now let's see again. Now suppose if I enter the marks 25, better luck next time you are fail, have a nice time, okay, fine, understood student। Now your next topic is syntax of if else statement that we know। After that nested if else statement, nested if else यानी
इफ एल्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स के अंदर नेस्टेड एल्स जिसको बोलते हैं. तो देयर आर सिचुएशन वेयर वी नीड टू एग्जीक्यूट series of decision in our program. We may use series of if else statement in nested form to achieve our task. Consider the following case where one if else statement block is used inside another if else block. Right? एक if else के अंदर स्टूडेंट दूसरा if else statement जिसको हम लोग बोलते हैं nested if else. So the logic of expression of nested if else statement is as under. If test expression 1 is true, then test expression 2 is checked. यानी कैसा होगा कि इफ कंडीशन में पहला एक्सप्रेशन अगर राइट आया है तो ही वो अंदर जाके दूसरे इफ स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन चेक करने जाएगा. इफ ट्रीट टेस्ट एक्सप्रेशन 2 इज ट्रू देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूट. अगर टेस्ट एक्सप्रेशन में 2 में कुछ रॉन्ग आया तो वो ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेगा, अगर राइट आया तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा. स्टूडेंट ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ. सी हियर कि हम लोगों को टोटल 3 नंबर लिखने हैं. कितने नंबर लिखने हैं? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. अगर मान लो कि नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो अंदर आएगा और वही नंबर 1 नंबर 3 के साथ भी चेक होगा. हमें इसमें क्या करना है सुन, तो ये 3 नंबर में से कौन सा नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है. अब 3 नंबर में अगर हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट से ये वर्क नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स की ज़रूरत लगेगी. तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करेगा कि नंबर 1 और नंबर 2 में कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, तो नंबर 1. फिर वही नंबर 1 के साथ नंबर 3 चेक होगा और इन दोनों में जो लार्जेस्ट नंबर मिलेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें. अगर ये स्मॉलेस्ट मिला तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि नंबर 3 इज लार्जेस्ट. राइट, उसी तरीके से नंबर 3 और नंबर 2 में अभी यहाँ पे हमें पता चल गया कि नंबर 1 नंबर 2 से लार्ज नहीं है तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्ट बाहर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चेक होगा कि नंबर 3 नंबर 2 से लार्ज है, यानी नंबर 1 तो नंबर 2 से ग्रेटर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे आ गया. मतलब नंबर 1 चेक करना नहीं है हमें फिर से. तो नंबर 3 नंबर 2 से लार्ज है तो द लार्जेस्ट नंबर इज नंबर 3, अदरवाइज द लार्जेस्ट नंबर इज नंबर 2. तो ये एक प्रोग्राम हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं स्टूडेंट. In your Darpan, page number 389, figure number 13.9, the same program is given over there. So let's start it. सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर num1, num2, num3 3 नंबर का हमें चेक करना है. पहले यूजर को बोलेंगे printf enter the 3 numbers. ओके स्टूडेंट, और scanf से ये तीनों नंबर को हम लोग स्टोर करेंगे. कॉमा एंड num1 कॉमा एंड num2 कॉमा एंड num3. ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे if स्टेटमेंट से if num1 ग्रेटर देन num2 है तो अंदर कंडीशन चेक करने जाएगा वो if num1 ग्रेटर देन num3 है तो यहाँ पे मैसेज देंगे, यानी नंबर 1 जो है स्टूडेंट वो नंबर 2 और नंबर 3 दोनों से लार्जेस्ट है. हम लोग यहाँ पे मैसेज देंगे नंबर 1 सॉरी डायरेक्ट ये देंगे %d is the largest number among all
नंबर्स, ओके। और यहाँ पे कॉमा करके हम लोग लिखेंगे num1। अगर ऐसा नहीं रहा, सपोज num1 ग्रेटर नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग मैसेज देंगे else मैसेज देना है स्टूडेंट नंबर 3 इज लार्जेस्ट नंबर, एल्स पार्ट में तो मैं मैसेज लिखता हूँ राइट नंबर 3, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ 2 नंबर के लिए चेक किया, अभी हम लोग चेक करेंगे नंबर 3 के लिए। तो ये इफ का यहाँ पे कंप्लीट होता है ब्रैकेट, इसके बाद एल्स, और इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे फिर से if num2, yes, num2 greater than num3 ऐसा है, तो यहाँ पे मैसेज देना है हमें num2 is the largest number among all 3 numbers, else हम यहाँ पे मैसेज देंगे num3 is largest number among all 3 numbers, okay student. Let's check the practicals output, run it, enter the 3 number, first is 10, 35 and 5, so 35 is the largest number among all 3 numbers। तो वापस मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर की पोजीशन पे लार्जेस्ट नंबर था, अब मैं इसको लेके जाता हूँ फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे 100, 50, 80, 100 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑल 3 नंबर। अब इसको मैं लास्ट पोजीशन पे लेके जाता हूँ स्टूडेंट, फिर से देखना आउटपुट 20, 300, 500, so 500 is the largest number among all 3 numbers। So here your if statement all 4 types are completed, okay। Have you understood student? The same way here if else ladder statement also work. This program I will explain from here only. If marks is greater than 69 then first class with distinction, else if अगर मार्क्स 69 से ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन, अगर 69 से कम है तो 59 वाली कंडीशन चेक होगी, 59 से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट क्लास, 49 से ज़्यादा होगा तो सेकंड क्लास, 39 से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट क्लास, अगर 39 से कम है तो उसको मैसेज आएगा फेल। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिकली आपके घर पे करना है एक बार, ओके। सो हियर टुडे वी विल स्टॉप, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट स्विच स्टेटमेंट, ओके। Thank you students, have a good day. If you have any doubt you can ask me on my WhatsApp number. Thank you.